अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में। कुछ फैक्ट्स जो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो मंदरजा झैल हैं। नंबर वन, दिस इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड is to be formed due to transfer of electrons. Number two, electrons transfer from a metal atom to a non-metal atom. Number three fact, due to this transfer of the electron, metal atom attains octet on loss of electrons. Number four, non-metal atom gains this electron or electrons and attains octet of 8 electrons. Number five, metal atoms on loss of electrons become positive ion. Number six, non-metal on gain of this electron becomes negative ion. Now, number seven fact, the positive ion with its complete octet comes close to the negative ion, having also a complete octet, and then both are held together with electrostatic force of attraction, and this force of attraction is actually called electrovalent or ionic bond. Number eight fact, the metals of group 1A and second A and the non-metals of the group 6A and 7th A form well-known ionic compounds. Number nine, electron always transfer to non-metals due to their higher electronegativity. Here, take the example of lithium atom. The structure of the lithium atom is represented here. In the outermost shell of the lithium atom, there is only one electron. And here, this is the atom of the fluorine. In the outermost shell of the fluorine, you can see there are 7 electrons. So, the one electron from the lithium atom transferred to the fluorine atom, and in this way lithium become lithium plus, and fluorine become F minus, also called fluoride. So the electronic configuration of fluorine atom is 1s2, 2s2, 2p6, and by the gain of one electron from the lithium, the electronic configuration of fluoride ion becomes 1s2, 2s2, 2p6. Now, this is the neon gas configuration, and this is the stable configuration. In this way, fluorine becomes fluoride and completes its octet of 8 electrons. Here you can see this is the lithium plus ion. In the outermost shell of the lithium plus ion, there are 2 electrons, and the capacity of the shell, that is the K shell, is complete. So this is the electronic configuration of lithium plus ion, like helium gas configuration. So lithium with electronic configuration 1s2, 2s1, after the loss of the electron, get 1s2, which is the helium gas configuration. In this way, lithium and fluorine becomes lithium ion, and fluorine become fluoride ion. The lithium positive and fluoride negative, they come close to each other and form ionic bond or the electrovalent bond. In simple way,
considering the electrons in the valence shell of the atoms of metals and nonmetals. Here, take the example of sodium. Electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. In the outermost shell of the sodium, there is only one electron, and the electronic configuration of chlorine atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. The outermost shell of the chlorine is having 7 electrons. You can see here 3s2, 3p5. So sodium transfer its electron toward chlorine side. In this phase, sodium becomes Na plus and chlorine atom becomes chloride Cl minus. Now the electronic configuration of Na plus, you can see here 1s2, 2s2, 2p6. And this electronic configuration of Na plus is like neon gas configuration. So this is the stable configuration. The octet of the sodium plus ion is complete. That is, there are 8 electrons in the outermost shell of the Na plus. You can see here 2s2, 2p6. In case of chloride ion, the configuration is like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So 3s2 and 3p6. This is representing the outermost shell or the valence shell, and 8 electrons are complete here. So the octet of chloride ion is also complete. And now the configuration is like argon gas configuration, which is an inert gas, and the octet is complete here. In this way, sodium plus and chloride plus, they come close to each other and they are held together through electrostatic force of attraction, and an ionic or an electrovalent bond is to be formed between Na plus and chloride to give NaCl. Here you can see another example. This is the magnesium. These are the fluorine atoms. In case of the magnesium, the configuration you can see 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So in the outermost shell of the magnesium, there are 2 electrons. This is 1 electron, this is the second electron. Now, this is the fluorine atom, and the other side, this is the fluorine atom. The electronic configuration of the fluorine is 1s2, 2s2, and 2p2. So this to correct 1s2, 2s2, 2p5. This is actually 2s2. So here we have 7 electrons in the outermost shell of the fluorine. On the other side, we have also the fluorine atom having the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. So you can count here, there are 7 electrons in the outermost shell of the fluorine. Here, there are 7 electrons in the outermost shell of the fluorine. So 1 electron from this side is transferred to this fluorine, and 1 electron from the magnesium transferred from this side. In this way, आप देख सकते हैं फ्लोरीन दोनों साइडों पर फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है.
जबकि मैग्नीशियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो गए। अब मैग्नीशियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो गई है, जो कि नियॉन गैस कन्फिग्रेशन है। इसी तरह फ्लोरीन एटम ने जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोरीन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस तरह फ्लोरीन एटम फ्लोराइड एटम में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो गई। इसी तरह ये फ्लोराइड आयन भी कंप्लीट ऑक्टेट गेन कर गया और इस तरह जो है ये भी नियॉन गैस कन्फिग्रेशन को पहुंच गया। मैग्नीशियम 2+ भी नियॉन गैस कन्फिग्रेशन को पहुंच गया और फ्लोराइड की जो कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो भी नियॉन गैस की तरह हो गई। सो द 2 fluorides on both sides, they get their octet complete also here, and magnesium also by losing 2 electron and converting into 2+ 1s2 2s2 2p6 यानी नियॉन गैस कन्फिग्रेशन को पहुंच गए हैं। All 3 have attained octet and have acquired neon gas configuration. In this way, one magnesium 2+ and 2 fluoride ions will held together and there would be an ionic bond between magnesium and fluoride. ये 2O की एग्जांपल हम लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। पोटाशियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में यू कैन सी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है। 4s1 मीन कि आउटरमोस्ट शेल पोटाशियम जो है वो कंटेन करता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन अगर आप देखें 1s2 2s2 2p4 है। इसका मतलब यह हुआ कि 2s2 2p4 वैलेंस शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है। ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पोटाशियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो पोटाशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन गेन कर लेगा। ऑन द अदर साइड ये पोटाशियम एटम जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन को दे देगा। इस तरह पोटाशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से K+ हो जाएगा। ये पोटाशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से K+ हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और इस तरह ऑक्सीजन 2- हो जाएगा। नाउ ऑक्सीजन has 2- charge and here the electronic configuration of the oxygen is 1s2 2s2 2p6. There are 8 electrons in the valence shell of the oxygen. This. So the octet of oxygen is complete due to the presence of the 8 electron and it becomes
oxide ion. Here potassium plus on the loss of the electron has gained the electronic configuration like this. You can see 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी outermost shell आपके प्लस का जो कि 3s2, 3p6 से स्टार्ट होता है, उसमें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और इस तरह पोटाशियम जो है वो आर्गन गैस जो कि इनर्ट गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच गए। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं, इस साइड पर भी आप देख सकते हैं। पोटाशियम ऑक्टेट कंप्लीट है पोटाशियम प्लस की फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो है जो कि कन्वर्ट हुआ है ऑक्साइड में, और वो नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच गए हैं। अब इस फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, के प्लस फॉर्म में पोटाशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस साइड पर भी के प्लस फॉर्म में पोटाशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इनको मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस करने या गेन करने की जरूरत नहीं है, ना पोटाशियम को है और ना ही ऑक्सीजन को। इन दिस वे हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बन गए हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आकर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे या इयानिक बॉन्ड बना देंगे। इस तरह K2O बन जाएगा, जिसको हम आयोनाइज्ड फॉर्म में 2K+O2- के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैल्शियम ब्रोमाइड की मिसाल लेते हुए, कैल्शियम सेकंड ए एलिमेंट्स में पाया जाता है और कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस साइड पर ब्रोमीन एटम है। ब्रोमीन चूंकि हैलोजेंस में पाया जाता है और 7th ए ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, यानी 4s2 और 4p5 में ये इलेक्ट्रॉन कुल 7 हो जाते हैं, जो कि आप इसके इर्द गिर्द नोट कर सकते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और कैल्शियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। कैल्शियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का ट्रांसफर होगा ब्रोमीन को और ब्रोमीन कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमाइड में। इसी तरह दूसरी साइड पर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन एटम को ट्रांसफर होगा और ये ब्रोमीन एटम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ब्रोमाइड के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इसी तरह कैल्शियम प्लस प्लस, चूंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो कैल्शियम प्लस प्लस हो गया है। तो अब कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुकम्मल हो गई है।
कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कैल्शियम +2 की फॉर्म में जब होगा तो आर्गन आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाएगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब कैल्शियम को इस फॉर्म में ना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत होगी, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत होगी, चूंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है 8 इलेक्ट्रॉन का, और इस तरह आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच गया है। ब्रोमीन ऑन द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4s2 और 4p6 अगर आप काउंट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ब्रोमाइड आयन के पूरे हो जाते हैं, और इस तरह ब्रोमाइड आयन क्रिप्टॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाता है। इस तरफ भी ब्रोमाइड क्रिप्टॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच गया, और कैल्शियम 2+ आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर गया। इसी तरह हमारे पास 3 तरह के आयन्स हैं। एक कैल्शियम का आयन है, 2 ब्रोमाइड के। ये तीनों आयन्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू करीब आकर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे या इयानिक बॉन्ड बना देंगे। ग्रुप 1A एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है इस कॉलम में, आप देख सकते हैं M मेटल के लिए यूज किया गया है, और ग्रुप 1A में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम पाए जाते हैं। अगर हम इन तमाम एलिमेंट्स को M से रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि M जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ये एलिमेंट्स जो हैं या ये जो मेटल्स हैं वो M+ में चले जाते हैं। यानी इसका मकसद ये है कि M+ लिथियम प्लस भी हो सकता है, सोडियम प्लस भी हो सकता है, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, फ्रांसियम प्लस भी हो सकता है। यहाँ पर अगर M+ के साथ नॉन मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और ये हेलोजन से हमने एक मिसाल ली है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको ट्रांसफर हो तो ये फ्लोराइड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर Cl को ट्रांसफर हो तो वो क्लोराइड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर Br को ट्रांसफर हो तो वो ब्रोमाइड बन जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल लॉस करता है आई को, यानी आयोडीन को मिल जाए तो वो आयोडाइड हो जाएगा। इस तरह MF बॉन्ड बन जाएगा, MCl बॉन्ड बन जाएगा, MBr बॉन्ड बन जाएगा, MI बॉन्ड बन जाएगा। इस कॉलम से अगर हम सिर्फ सोडियम को ले लें और M अगर सोडियम है तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर M की जगह K ले लें तो वो पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा। इसी तरह ये M+ जो है वो ऑक्सीजन और सल्फर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं,
इनको भी अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। अब ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा, और सल्फर को दो इलेक्ट्रॉन, यानी दो मेटल से, एटम से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो सल्फाइड आयन बन जाएगा। इस तरह M प्लस और ऑक्साइड और M प्लस सल्फाइड के साथ M2O M2S बन जाएगा। अगर आप पोटाशियम ले लें तो यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन और सल्फर के साथ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K2O K2S। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन का एलिमेंट ले लें, और नाइट्रोजन जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। अब नाइट्रोजन 3M से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्राइड बना देगा, यानी N3- बना देगा। अब हम यहाँ पर ये फार्मूला लिख सकते हैं, M3N। M का मतलब Na3 है, और N के साथ मिलकर Na3N बन जाता है, सोडियम नाइट्राइड बन जाता है। अब हम एग्जांपल लेंगे सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की। M स्टैंड फॉर मेटल। इस ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। M अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो M प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। M प्लस प्लस के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो फ्लोराइड को जा सकते हैं, और इस तरह इस दो क्लोराइड्स बन सकते हैं, दो ब्रोमाइड बन सकते हैं, और दो आयोडाइड बन सकते हैं। सो वी कैन गेट इन केस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। चूंकि फ्लोराइड पर एक नेगेटिव होगा और मेटल पर दो पॉजिटिव है, इसलिए इस मेटल को दो फ्लोराइड या दो क्लोराइड, दो ब्रोमाइड या दो आयोडाइड चाहिए होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है वो कैल्शियम F2CaCl2 CaBr2 CaI2 बन रहा है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को मिले तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है 2- में, और दो इलेक्ट्रॉन अगर सल्फर को मिले तो वो कन्वर्ट हो जाएगा S2- में। इस मेटल एटम पर दो प्लस हैं, और ऑक्सीजन पर दो माइनस है, सल्फर पर दो माइनस है, इसलिए कंपाउंड का जो फार्मूला होगा वो MOMS होगा। अगर M की जगह हम मैग्नीशियम ले लें तो ये फार्मूला MgO MgS हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन में सलाहियत है कि वो किसी मेटल से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और नाइट्राइड में कन्वर्ट हो गया। M प्लस दो पॉजिटिव है, और इसी तरह N पर 3 नेगेटिव हैं। M+2 and N3- will combine to each other to give M3N2। अगर हम कंसिडर करें बेरियम को तो इस तरह हमारे पास M की बजाय Ba3N2 हो जाएगा।
क्योंकि बेरियम के 2+ है और नाइट्राइड के 3- है, तो बैलेंस करने के लिए 6 नाइट्राइड चाहिए होंगे, 6 नेगेटिव चाहिए होंगे और 6 पॉजिटिव चाहिए होंगे। अगर हम Ba2+ को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर हम 3 नेगेटिव्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 नेगेटिव बन जाएंगे, और इस तरह ये फार्मूला Ba3N2 हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि अगर आपके पास जिंक 2+ हो तो हेलोजन ग्रुप के साथ कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, और इसी तरह नाइट्राइड, ऑक्साइड और सल्फाइड के साथ जिंक 2+ जब मिलेगा तो यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रोवैलेंट्स बॉन्ड के कंपाउंड्स बनेंगे। ये एक्सरसाइज आप करें और इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपने किस हद तक इस टॉपिक को लर्न किया है या अंडरस्टैंड किया है।